Fubini's theorem. If function of x and y is continuous throughout the rectangular region or where x is greater than or equal to a less than or equal to b and y is greater than or equal to c less than or equal to d, then double integral over rectangular region r of the function x and y dA is equal to integral from c to d, integral from a to b f of x and y dx dy, and if we reverse the order of x and y, we will get integral from a to b, integral from c to d f of x and y dy and dx. This theorem represents Fubini's theorem, and this theorem is for only rectangular region R. Example: calculate double integral over rectangular region R for the function of x and y dx, where function of x and y is equal to 1 minus x square y and x is greater than or equal to 0, less than or equal to 2, and y is greater than or equal to 1 and less than or equal to 1. So we find double integral over R over rectangular region R of the function x and y dA, where rectangular region represent x is greater than or equal to 0, less than or equal to 2, and y is greater than or equal to minus 1 and less than or equal to 1. If we consider the order first represent x, first we integrate the function with respect to x and then integrate the function with respect to y. So this integral for y and this integral for x. So we apply limits here for the y and here for the x. So the limit of the x is, lower limit is 0 and the upper limit is 2. Similarly, the lower limit for y is minus 1 and the upper lit for y is equal to 1. So first of all, we integrate this function for the x. So integral of 1 is equal to x and integral of 6x square y is equal to 6, and y are representing constant, numbers are constant function. So 6y, we will get 6y is a common from the integral, and integration of x square is x cube divided by 3 and limit 0 to 2 here, and इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 dy. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस इंटीग्रल को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लिया है. अब यहाँ पे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं तो x1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ 1 dx ये हमारे पास इक्वल होगा x का. सो x का इंटीग्रेशन, हम 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास x आ रहा है. 6x स्क्वायर y का इंटीग्रेशन हमारे पास 6x क्यूब y होल डिवाइड बाई 3 आ रहा है, क्योंकि 6y हमारे पास यहाँ कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 6y हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर के अगर हम इंटीग्रेशन मालूम करें तो ये x क्यूब होल डिवाइड बाई 3 बन जाएगा. और इसकी जो लिमिट्स थे हमारे पास 0 to 2 वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है. इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 एंड dy अपनी जगह पर है. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ये लिमिट्स अप्लाई करते हैं. सो 3 1 is 3 3 2 are 6, तो ये हमारे पास फर्दर इस तरह बन जाएगा x इंटू x माइनस 2x क्यूब y. अब यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे x की जगह हम 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ हम x की जगह 0 पुट करेंगे और दोनों के दरमियान क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे. तो अपर लिमिट हमारे पास 2 है, तो यहाँ x की जगह हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई y बन जाएगा. और यहाँ पर माइनस 0 पुट करने से हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा, और -0 लिखने की कोई ज़रूरत हमारे पास नहीं है. फर्दर यहाँ पे 2 अपनी जगह पर, 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा. सो इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 2 - 16y dy. नाउ
we want to find the integral of 2 minus 16y. So integral of 2 is equal to 2y and integral of 16y is equal to 16y square divided by 2. Now dividing 16 by 2, 2 1 is 2, 2 8 are 16, so 2y minus 8y square, और ये जो यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स थे वो हमारे पास अपनी जगह पर है। अब यहाँ पे हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, तो यहाँ y की जगह हम 1 पुट करेंगे, यहाँ y की जगह हम -1 पुट करेंगे और दोनों के दरमियान क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द आंसर 4। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y कर ली है। अब अगर हम इंटीग्रेशन को रिवर्स करें, यानी ये हमारे पास dy और dx आ जाए, यहाँ पे x की लिमिट और यहाँ पे y की लिमिट आ जाए, तो तब भी अगर हम उसका रिज़ल्ट फाइंड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, और वो एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म हुज बेस इज अ triangle and the xy plane bounded by xy is equal to x and x is equal to 1, and whose top lies in the plane f of x and y is equal to 3 minus x minus y। यहाँ पे हमने एक प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये प्रिज्म बाउंडेड है हमारे पास y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 1, और उसका जो हमारे पास टॉप प्लेन है तो हमारे पास है 3 माइनस x माइनस y। सो हमने चूंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर रीजन R फंक्शन ऑफ x एंड y dA। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x एंड y की वैल्यू तो हमारे पास 3 माइनस x माइनस y है, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। अगर हम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर dy आ जाएगा, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिमिट हमने क्या पुट कर दी है, x की लिमिट हमारे पास क्या होगी, y की लिमिट हमारे पास क्या होगी। तो यहाँ पे ये कह रही है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म हुज बेस इज अ ट्राइएंगल इन द xy प्लेन। सो यहाँ xy प्लेन पे x की जो हमारे पास अपर वैल्यू है वो हमारे पास 1 रिप्रेजेंट कर रही है, तो xy प्लेन में इसकी जो लोअर वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो x इज बिटवीन 0 एंड 1, तो x की जो हमारे पास लिमिट्स आ रही है वो हमारे पास 0 एंड 1 है। सिमिलरली हमारे पास अगर y की लिमिट हम मालूम करना चाहें तो xy प्लेन में हम y की लिमिट मालूम करेंगे, तो y का जो अपर लिमिट हमारे पास आ रहा है वो x है, और उसका जो लोअर लिमिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमने x की लिमिट 0 to 1 और y की लिमिट्स 0 to x पुट की हुई है। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 0 to x पुट करनी है इस फंक्शन में, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम इसके बाद इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 3x माइनस एक्स स्क्वेयर minus x square divided by 2 whole dx. Further, integral from 0 to 1 3x, इन दोनों का अगर हम LCM फाइंड करें तो ये हमारे पास 3x square divided by 2 आ जाएगा whole into dx। अब 3x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x square divided by 2 आ जाएगा। इसी तरह -3 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कांस्टेंट है, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से ये x क्यूब डिवाइड बाई 3 बन जाएगा होल इनटू 0 to 1, क्योंकि ये हमारे पास x की जो लिमिट्स है वो 0 to 1 है, तो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोगों ने यहाँ पे x की जगह 1 और फिर 0 पुट करनी है, तो ये हमारे पास 3 into 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 क्यूब डिवाइड बाई 2
माइनस, अब यहाँ पे हमने 0 पुट करनी है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर ले, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म होगा।